ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ روز شام کو یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آ گئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر دنگ رہ گئی اور جھولے سے اتر کر اس درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تم جیسی اچھی اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کروں اور کھٹی میٹھی رس بریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزوں نے بتایا کہ درخت پر ایک سنہری پرندہ آ کر بیٹھا تھا اور انسانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا، بیٹی میں نے کہانیوں میں تو سنا ہے کہ پرستان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ بھی پرستان سے ہی آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کرتی رہی، مگر وہ پرندہ دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل سے نہ نکال سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی گل صنوبر کو دیے، مگر اس نے ان کھلونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 2-3 روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند دنوں میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائے تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات جب اس نے ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہوئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کو تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ اس دوران رعایا کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ ایسا کریں کہ یہ اعلان کروا دیں کہ جو بھی پرستان سے اس عجیب و غریب پرندے کو لے کر آئے گا اسے بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اعلان کروا دیا۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگ قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پرستان بہت دور تھا اور اس کا راستہ بھی پرخطر تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ تھے، دریا تھے، جنگل تھے اور جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا عبور نہ کر سکے۔ کچھ لوگ جنگل میں درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی پرستان سے اس پرندے کو لے کر نہ آ سکا۔ ایک روز 2 نوجوان بادشاہ سے ملنے محل آئے اور بادشاہ سے پرستان جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور تاکید کی کہ وہ اس پرندے کو لے کر جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہزادی گل صنوبر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ دونوں نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس پرخطر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا، وہ ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرے نوجوان کا نام سلیم تھا اور اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چونکہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں
बहुत गुरूर था। इसने शहरयार से कहा, तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियां काटो और इन्हें गधे पर लादकर शहर में बेचो। तुम किन चक्रों में पड़ गए हो? शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुराकर बोला, लकड़ियां तो मेरे अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। हमारे बादशाह सलामत और इनकी मलका बहुत अच्छे हैं। वो दोनों अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखते हैं और इनके अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अपने बादशाह सलामत की वजह से हम लोग बहुत खुशहाल हैं। अब इन पर बुरा वक्त आन पड़ा है तो हमारा भी फर्ज है कि इनकी मदद करें। मुझे इनाम का लालच नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो परिंदा जल्दी से जल्दी लाकर बादशाह सलामत के हवाले कर दूं ताकि इनकी बेटी खुश हो जाए और हमारे बादशाह और मलका की फिक्र दूर हो जाए। वो बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। इस वक्त वो एक मैदान में थे जिसमें कहीं कहीं बड़े दरख्त भी नजर आ रहे थे। एक दरख्त के नीचे इन्होंने एक बूढ़ी औरत और उसके शोहर को देखा। शहरयार और सलीम को आता देखकर बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। ओए बूढ़े शख्स, तेरा दिमाग खराब है जो हमारा रास्ता रोक रहा है? सलीम ने निहायत गुस्से से कहा और घोड़े पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से धक्का देकर बूढ़े को एक तरफ हटा दिया और घोड़ा भगाता हुआ आगे निकल गया। बेचारा बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। इसे गिरता देखकर इसकी बीवी चीख चीख कर दुहाइयां देने लगी और इसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर शहरयार जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा, बूढ़े को जमीन पर से उठाया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, आपको चोट तो नहीं आई? बूढ़ा कराहता हुआ खड़ा हुआ और बोला, बुरा हो इस बदबख्त का, मुझे पहले से पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी इसे अपनी मदद के लिए नहीं रोकता। इसे छोड़िए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शहरयार ने निहायत नरमी से कहा, बेटा हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी बीवी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से चंद कोस के फासले पर है। हम बूढ़े हैं, चल चल कर बुरी तरह थक गए हैं, भूख से बुरा हाल है। घर पहुँचे तो खाना खाएं और आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर हमें गांव तक पहुँचा दो। बूढ़े की बात सुनकर शहरयार ने अपना खाना निकाल कर इन दोनों को दिया। ये खाना इसकी माँ ने इसको दिया था ताकि सफर के दौरान जब इसे भूख लगे तो खा ले। जब वो दोनों खाना खा चुके तो शहरयार ने दोनों को घोड़े पर सवार कराया और खुद घोड़े की बाग पकड़कर तेज तेज कदमों से इनके गांव की सिमत रवाना हो गया। दोनों मियाँ बीवी इसे दुआएं दे रहे थे। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए। इसी गांव में इन बूढ़े मियाँ बीवी का घर था। घर पहुंचकर बूढ़े और इसकी बीवी ने बड़े इसरार से शहरयार को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अगले रोज तक इनके घर में ही ठहरे, क्योंकि रात सर पर थी और रात को यूं सफर करना भी मुनासिब नहीं था। शहरयार ने इनकी बात मान ली। रात खाने के बाद बूढ़े ने कहा, अब नौजवान बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में शहरयार ने पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले परिंदे की तलाश में परस्तान जा रहा है ताकि उसे ले जाकर शहजादी गुल सनोबर के हवाले कर सके। इसकी बात सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, परस्तान में कुछ ऐसे नायाब परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, मगर इन्हें वहां जाकर तलाश करना पड़ेगा। परस्तान जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर खतरात बहुत हैं और इसका रास्ता भी बहुत तवील है। दूसरा रास्ता करीब का है और अगर तेज रफ्तार घोड़ा हो तो 1 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। इस रास्ते पर कोई खतरा नहीं है। अगले रोज शहरयार सुबह सवेरे बेदार हुआ। बूढ़े ने इसे परस्तान का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया। वो रवाना होने लगा तो बूढ़े ने अपने घर के पिछले हिस्से में लगे दरख्तों से बहुत सारे अमरूद तोड़कर एक थैले में रखकर इसे दे दिए और बोला, परस्तान के परिंदे अमरूद बहुत शौक से खाते हैं। ये फल परस्तान में नहीं होता, इसलिए इनकी तलाश में वो इंसानों की दुनिया में चले आते हैं। तुम ये अमरूद अपने पास रखो, मुझे यकीन है कि इनकी खुशबू वहाँ के परिंदों को तुम्हारी तरफ मतवज्जा करेगी। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा परिंदा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। शहरयार ने अमरूद लेकर इसका शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। जिस रास्ते पर इसका घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत साफ सुथरा और हमवार था। एक लंबी पगडंडी थी जिसके दोनों अतराफ हरी भरी घास थी। कहीं फूलों के पौधे भी नजर आ जाते थे। इस रास्ते पर सफर करते हुए वो बहुत जल्द परस्तान पहुँच गया। वो परस्तान में दाखिल हुआ
तो चारों तरफ चहलकदमी नजर आ रही थी। हसीनो जमील परियां खूबसूरत और रंग बिरंगे लिबास पहने इधर से उधर उड़ रही थीं। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े निहायत खूबसूरत परिंदे फजा में उड़ रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाजों में चहचहा रहे थे, मगर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी जुबान में बात कर रहा हो। शहरियार को मायूसी तो बहुत हुई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद की काशें अपने सामने एक कपड़ा बिछा कर रख दी। अमरूद की खुशबू से जितने भी परिंदे थे वो वहाँ आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से इन्हें खाने लगे। और भाई परिंदों क्या हाल है, इसने कहा, मगर किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। शहरियार समझ गया इन परिंदों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काशें खत्म हो गईं, तो वो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। अचानक एक सुनहरी परों वाला परिंदा फजा से उड़ता हुआ आया और शहरियार के सामने बैठकर बोला, अफसोस मुझे आने में देर हो गई, सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। शहरियार इस सुनहरी परिंदे को इंसानी जुबान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। इसने एक बड़ा सा पीला नरम अमरूद निकालकर इस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फदकता हुआ इसके पास आकर बैठ गया और मजे से इसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरियार ने अपने मतलब की बात कह ही दी। क्यों नहीं, परिंदे ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ अमरूदों के भी बहुत से बाग हैं और मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे? मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दूर का सफर तय करके आया हूँ। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद करके हलकान हो गई है। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर इस शहजादी के हवाले करूंगा। वहाँ महल में तुम बहुत आराम से रहोगे और मैं उसे बता दूंगा, वो तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करेगी। शहरियार ने कहा, मैं कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका हूँ। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था और इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई थी। वो बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखुशी इसके साथ रहने को तैयार हूँ। परिंदे ने कहा और उड़कर शहरियार के हाथ पर बैठ गया। शहरियार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पर इसके घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। अभी वो अपने मुल्क की हदूद में दाखिल ही हुआ था कि इसने सलीम को दूर से आते हुए देखा। इसकी हालत इंतहाई खराब थी। इसका जिस्म धूल मिट्टी से अटा हुआ था और कपड़े भी बोसीदा हो गए थे। इसका घोड़ा भी नहायत कमजोर हो गया था। शहरियार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम इस पुरखतर रास्ते पर निकल गया होगा जिसके बारे में बूढ़े ने इसे बता दिया था। सलीम ने भी इसे देख लिया था। वो इसके करीब आया, दोनों एक दूसरे से मिले। शहरियार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में इस सफर पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। शहरियार ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि इसने बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बैठाकर इनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर इसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया है। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? सलीम ने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहरियार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा इनके सरों पर मुंडला रहा है। इन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चला कर कहा, शहरियार जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरियार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने इसे जाता देखा तो बोला, अगर मैं इन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक ना करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे दो परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बद अखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौका जाया कर दिया। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सजा मिल गई है। ये कहकर वो अपनी राह हो लिया। शहरियार महल पहुंचा तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुल सनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्द इससे मानूस हो गया था। शहजादी जहाँ भी जाती वो इसके पीछे पीछे होता। शहरियार के कहने पर शहजादी गुल सनोबर ने वादा कर लिया था कि वो परिंदे को पिंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुल सनोबर को खुश देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शहरियार की हिम्मत
हिम्मत और बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इसलिए बादशाह ने शहरयार को घर जाने नहीं दिया और इसे शाही मेहमान खाने में ठहरने का हुक्म दिया। अगले रोज हस्बे वादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी अशरफियां इनाम में दी। शहरयार ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रख कर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुल सनोबर अपने सुनहरी परिंदे के साथ इसे खुदा हाफिज कहने आई। शहरयार महल से निकला तो इसका रुख अपने घर की जानब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इस बूढ़े के गांव की जानब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो इनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा हुआ था। इसकी बीवी इसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा काम पर भी नहीं जा सकता था। शहरयार को देखकर दोनों मियां बीवी खुश हो गए। शहरयार ने अपनी कामयाबी की खबर इन्हें सुनाई। फिर इसने बादशाह के दिए हुए इनाम में से आधी अशरफियां बूढ़े के हवाले की और बोला, आधे इनाम के आप भी हकदार हैं। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मुझे वो बोलने वाला परिंदा कभी न मिलता। इतनी बहुत सारी अशरफियां पाकर वो दोनों खुश हो गए और शहरयार को दुआएं देने लगे। इसके बाद शहरयार अपने घर आया। इसने पूरी कहानी अपने माँ बाप को सुनाई और बादशाह से मिला हुआ आधा इनाम इनके हवाले किया। इसके माँ बाप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो इस बात पर भी बहुत खुश थे कि इनके बेटे ने अपने मौसन को फरामोश नहीं किया था और इनाम का आधा हिस्सा इन्हें भी दिया था। इनाम में मिली हुई अशरफियों से शहरयार ने अपना कारोबार किया। इसके बाप ने जंगल से लकड़ियां काट कर फरोख्त करना छोड़ दिया और कारोबार में अपने बेटे का हाथ बटाने लगा। थोड़े ही दिनों में इनका कारोबार खूब चमक उठा। यूं एक लकड़हारे का बेटा कमजोर इंसानों से मोहब्बत और इनकी मदद करने के सिले में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा।